एनी टाइम आई वेंट टू एनी स्टोर मुझे वहाँ पे देसी बंदा नज़र आया। तो मुझे एक चीज़ डेफिनेटली पता लगी थी 1.5 साल के अंदर कि हमारे लोग यहाँ पे कि मेहनत करते हैं, ये उस काम में जाते हैं जहाँ पे पैसा होता है। आपके एम्प्लॉय का एटीट्यूड ये है कि बस ठीक है यार 8 से 2 जाना है, उनको लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं है, दिस इज़ व्हाट दे वांट टू डू, गेट रिड ऑफ दैट एम्प्लॉय। आई एम सॉरी, यस आप कहेंगे कि यार ये बंदा बैठ के लोगों को कह रहे हैं निकाल दो, यस मगर वो दैट पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू। PSL आया था ना, तो मैं जॉब करता था, तो तब वैसे था यार एक दिन पैसे आएंगे ना PSL की टीम खरीदेंगे। तो जब पैसा है तो टीम तो बिक नहीं रही थी, तो मैं जाके स्पॉन्सर कर देते हैं। सो वी डिड स्पॉन्सर फॉर मल्टीपल रीजंस एंड पीपल थॉट आई एम क्रेजी, आई लिव इन अमेरिका, पाकिस्तान में जाके टीम स्पॉन्सर कर रहा है, व्हाट बेनिफिट यू गोना गेट आउट ऑफ इट। ट्रस्ट मी, that was the biggest marketing I have done for my company brand. Hello and Assalamu alaikum everyone. This is me Uzair Hassan and you are watching the all new episode of the Sapiens Experience podcast. In 2026, we have decided to go much bigger. So we are going to bring stories globally for you guys. In today's episode, we are going to have a very interesting personality joining us all the way in our Texas studio, Mr. Chaudhry Ayaz. Assalamu alaikum Ayaz bhai, how are you? Walaikum assalam Uzair bhai, I'm good. How are you? I'm good and good to see you, and it's very good to see you office के बाहर भी, क्योंकि I've often seen you, and in fact the people who know you, they have seen you working or they have seen you traveling. So tell us a little about how you have been so far. So far is good. I think 2026 is going good so far. 2025 was amazing, the best year we had. You usually most of the time knows like what's happening in the office, Yeah. what's going on. I'm mostly working or I'm home, you know. So I think so far it's going great. Ayaz bhai, we have seen you in multiple podcasts and in different podcasts आपने अपनी life history के बारे में तो बताया ही है, but we are going to focus more on the business journey, the entrepreneurial journey, and what are the ventures that you are looking up to in 2026, उसके बारे में बात करेंगे. Ayaz bhai, in multiple podcasts you have talked about your journey so far, and हमारा main जो focus आज रहेगा वो आपके business ventures के ऊपर रहेगा. इन 2 सालों में क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने काम किया जिसकी वजह से Panthers is where it is right now? First of all, thank you for having me, Uzarbi. You know, so 2-year journey, it feels like yesterday, but trust me, it went like it felt like long too, but it went pretty quick. Journey, to, of course, you must have heard it in the previous podcast. But 2 साल में what we achieved is, I mean, sometimes I don't even believe that, right? But goals say life में, but you know what I have learned in last 2 years, कि don't give up. If you keep doing it, trust me, sky's the limit. So, like starting from one gas station, owning 11 different businesses at the moment, it's not a small task. Like it takes people years to like jump into something new. One thing about me is like I'm not like scared of anything. Like my thing is like, अच्छा ठीक है यार business आया मुझे समझ आ गया, we're gonna jump into it, we're gonna see and how we can run it, right? But so far I think whatever we putting our hands on, alhamdulillah, it's going great. I have a great team, but one more thing, with the expansion of the business, we literally expanding the team. So अगर एक XYZ company है, दूसरी company का बंदा उसके अंदर interfere नहीं करना, which is very important. You need to draw the lines within your own businesses and treat every business individually. ओके अच्छा याज भाई, हमने लाइफ हिस्ट्री के बारे में इसलिए कम टाइम आज रखा है क्योंकि वी वांटेड टू फोकस मोर ऑन दिस जर्नी जो आपकी रही है, क्योंकि देयर आर मैनी लिसनर्स एंड व्यूअर्स ऑफ आवर पॉडकास्ट जो कि रिसेंटली या तो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मूव हुए हैं, एंड वी ऑफ्टन सी दिस माइग्रेशन दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, एंड लोग प्रेफर करते हैं, ऑफ कोर्स नॉर्थ अमेरिका थोड़ा सा मुश्किल है तो लोग यूरोप की तरफ भी मूव कर रहे होते हैं, एंड इनिशियली लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं, दे रियली लुक अप टू एनी सपोर्ट और एनी होप जिससे उनको पता चले कि उनको आगे क्या करना है. तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे. गैस स्टेशंस का आपने जिक्र किया, वी ऑफ्टन सी दिस एंड हमें अक्सर ये सुनने को भी मिलता है कि गैस स्टेशंस जो हैं वो पीपल नो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, एंड अगर आप एक गैस स्टेशन बनाते हैं सो इट्स वेरी रेयर कि कुछ लोग जो है अपने सेकंड या थर्ड गैस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं अपने लाइफ स्पैन के अंदर. व्हाट वाज योर टेक्निक इन दैट, एंड क्या आपने ऐसी चीज़ें फिगर आउट की या कौन से आपने ऐसे समझ लें वेज ढूंढे जिसकी वजह से
you multiplied quickly compared to a average person who is into this business right So now? uska, I'm glad you asked this question because मैंने previously I did the same thing. When I was in Louisiana, I did the same thing. एक store लिया, दूसरे साल में जाके दूसरा हुआ, तीसरा. But I kept on doing what everybody else was doing. So वो क्या होता है कि हम copycat कर रहे होते हैं कि अच्छा उज़ैर भी ये कर रहे हैं and let's try to do that. But you don't explore within your own self. So learned a lot from that. The difference, what changed, one, I knew how to run it. I knew the setup I'm going to build behind the business to support that business. The main problem हमारे लोग करते हैं gas station में, mostly Indian, Pakistani, Bangladeshis, Nepali, you know, like they're mainly into gas stations. But at the same time, you yourself know here that there are big companies in USA, but they're all American companies. But then you QT है, हजार स्टोर हैं, you know, 7-Eleven है, 73,000 plus stores हैं all over the world. Okay, then you have Circle K, Time Wise. I can name them out loud, right? Where the difference was between us and them. So what I did, I studied them literally. So I studied कि अच्छा ये कर कैसे रहे हैं. तो उसमें 7-Eleven, of course, is a publicly traded company, but QT is not. It's a privately owned company. But the structure they're both working on is same, which is they don't just go towards conventional बैंकिंग टेक्निकल के, यार मैं एक बैंक के पास जाऊंगा, मैं यहाँ पे जाके पैसे जमा करूंगा और फिर स्टोर पे खड़ा होकर काम करूंगा और फिर उसको लाइक चोरी हो जाएगी, एम्प्लॉय ने चोरी करनी है, भले आप खुद भी खड़े हो जाओ, इट हैपेंस, पीपल विल एग्री विद मी, इफ समबडी सेइंग नो इट्स अ प्रॉब्लम, यू नो, लाइक गैस स्टेशन इज एक्टिवली पीपल स्टील. हम लोग ये बोलते हैं कि एम्प्लॉय थेफ्ट इज वर्स, इज मोर डेंजरस देन अ customer theft, right? Because वो उसको in and out पता है आपका उसका. So that's where I made a difference. Instead of just going to conventional banking, I went to private equity firms. I'm saying it very out loud because I want people to know how they can do it and how they can acquire, like secure that funding. It's not easy. It's more tough to secure that funding than a conventional bank. But once you get there, it comes with a lot of knowledge. That man, every time I was actually literally genuinely yesterday, I was talking to somebody. They were like, "यार मुझे भी ये करना." मैं कहा, "ये करना problem नहीं है." Every time I go to a group or every quarter, or you know, I talk in quarters. Like every quarter में ये हो रहा है. Sometimes they come back and every time they come and they want to talk to me. It's like an interview. Okay, I asked last time तेरे पास 20 stores थे. So what changes you to go towards 50 and 70? So I think the knowledge behind the business, like how you're going to do it, how you're going to implement it, is very important. And don't be like, don't take stress. Stress always going to be there, but don't have a fear of कि यार अच्छा मैं ये करूँगा तो like, तो वो fear kills you. हमारे लोगों का जो आप कह रहे हो, and I did myself, मैं किसी और का नहीं, मैं अपना बोल रहा हूँ, मेरा भी यही fear था कि अच्छा यार एक स्टोर के ऊपर करूँगा, दूसरे पे जाऊँगा, फिर क्या होगा, अगर ये हो गया तो बैंक क्या करेगा. If you do everything by the book, and I say it out loud, डोंट मेस विद लाइक चिंदी पना नहीं करो, वहाँ पे $5 बचा लिया, IRS को पैसे नहीं दे रहे, कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ये करें वो करें. नो, गो बाय द बुक मैन, डू इट प्रॉपरली, डू द एक्सपेंस इज फ्रूटफुल. सो आई थिंक बैंकिंग, आई डू बैंक विद बैंक्स नाउ, बिकॉज अब क्या हो गया है कि जनरली स्पीकिंग 2 साल पहले जो बैंक मुझे $20 नहीं देना चाह रहा था, वो अभी मुझे आके कहते हैं कि आप हमसे 30 मिनट की लाइन ऑफ क्रेडिट ले लें, $10 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट ले लें. एम आई टेकिंग इट? नो, बिकॉज मुझे शायद उससे भी ज़्यादा चाहिए. सो इट्स लाइक, इज इट हैपनिंग ग्लोबली? जो गैस स्टेशन का ट्रेंड आप फॉलो कर रहे हैं, या जो डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं एशियन कंट्रीज की, पाकिस्तान की, इंडिया में, इज इट no, the market is completely different because I'm actually looking actively to acquire stores in Pakistan. So this infrastructure is completely different, right? Okay. वहाँ पे बहुत सारी NOCs चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आप बंदे को नहीं जानते तो आप कर नहीं सकते, you know, like, so it's completely different. यहाँ की best चीज़ ये है, you don't need to know people to get into a business. You need to know people how to acquire a business, कि अच्छा कौन बेच रहा है, कब हो रहा है. But ये नहीं है कि यार उधर भी ज़रा सिफारिश कर देना, ये वाला परमिट क्लियर कर लो. If you are clean, they check you on everything, and you're able to get the permits without anybody's help, right? So there's a huge difference. Your market is very different. But what I'm saying, I think some part of Europe, because अब आप बोलोगे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं actually England में stores देख रहा हूँ अभी. Okay. It's actually my brother's in-laws, and I just came back from Pakistan, and they were like, यार आज भी से पुणे हम वहाँ पे store लेने, will you come on board? Of course I'll come on board. Market is same. पाकिस्तान में difference ये है कि यहाँ पे we make the most amount of money from the store, not from the fuel. आजकल we're making with the fuel because thanks to like whatever is happening to the economy and the fuel prices going down and everything. So not every day you make money, but Pakistan में अच्छी चीज़ क्या, you do make money on the fuel.
पाकिस्तान ठीक में है। आप पेट्रोल पे अगर उस लैंग्वेज में बोलूँ तो पैसा बनाते हैं, स्टोर में है ही नहीं, क्योंकि वहाँ लेकिन वहाँ पे तो एक प्राइस है, जैसे यहाँ पे हमने देखा है। इसका भी मुझे डिफरेंस बताइएगा, क्योंकि वी ऑफ्टन रिसीव दीज हाँ। क्वेश्चंस एज वेल कि आप लोग के यहाँ एक गैस स्टेशन की प्राइस डिफरेंट होती है, बट पाकिस्तान इज़ अ रेगुलेटरी अथॉरिटी एक है जो कि प्राइसेस सेम रखती है थ्रू Yes. आउट द अभी पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी आप नोट करना कि वहाँ पे भी प्राइस चेंज होने लगी है। शेल ब्रांडेड स्टोर्स विल हैव द सेम प्राइस, बट अटक लाहौर में मैंने देखा है 2-3 और ब्रांडेड गैस स्टेशन आ गए हैं, पेट्रोल पंप्स, उनकी प्राइस में 5 से 6 रुपए का फ़र्क है। सो Okay. आई नोटिस दिस ऑन दिस ट्रिप बिकॉज आई एम अ गैस स्टेशन गाय, तो मुझे होता है कि स्टोर कैसा बना हुआ है, क्या हुआ यहाँ इज इट पे। बिकॉज के मोटरवे के करीब आप कह रहे हैं, या इन जनरल नहीं, इन जनरल मैं बहरिया टाउन में रहता हूँ, यू नो दैट, सो इन बहरिया टाउन आई नोटिस इट, बगर आई थिंक इट्स द सेम formula what is here is it's branded fuel versus unbranded fuel, so it's the quality of a fuel versus a bad quality of a fuel. यहाँ पे क्या है उज़ैर, there are multiple factors into it. One, Chevron has a different price, Shell has a different price, ExxonMobil has a different price, Valero is cheaper. Then we have unbranded stores, जैसे Kroger पे आपको गैस मिल रही है, Walmart के ऊपर गैस मिल रही है, वो तो बिल्कुल unbranded गैस है। अब I'm sure I don't know if you ever have done it, कि गाड़ी अगर सही यहाँ पे नहीं चल रही तो we put the fuel injector into it, कि किसी भी ऑटोमोबाइल स्टोर से मिलता है, गैस स्टेशन में, मगर अब शेल की गैस के साथ आपको ये करना नहीं पड़ेगा। तो दे आर चार्जिंग यू अ प्रीमियम फॉर द टेक्नोलॉजी, फॉर द रिसर्च R&D they did on the fuel, how to make it good, more effective for the engines and everything. One. Second is कि गैस पिक कौन से टर्मिनल से हुई है। तो अगर गेलिना पार्क से हुई है, विच इज़ लाइक इन पैसाडीना, वर्सेस इट गॉट पिक्ड अप समवेयर इन टर्म्स ऑफ, अगर आप किलोमीटर या माइल्स बता सकें। माइल्स के ऊपर होता है, एनीथिंग ओवर 50 माइल्स, उसमें 2 चीज़ों का फैक्टर आ जाता है, एक फ्यूल का, सेकंड फ्रेट का। सो जो हमारी अगर आज की अगर बेस प्राइस $90 है कॉस्ट, उसके अंदर हम 3 pennies फ्रेट का ऑटोमेटिकली ऐड कर देते हैं। बट अगर आप वो 100 माइल्स दूर है तो वो 100 टाइम्स 3 penny वो आपको फ्रेट कंपनी भी चार्ज कर रही है, मगर फ्यूल प्राइस इटसेल्फ बैरल प्राइस सेम है। ओके। ऑल ओवर द वर्ल्ड जब स्टॉक मार्केट खुलती है, वो आप दुनिया में कहीं पे भी चेक करोगे, सेम फ्यूल प्राइस। नाउ द डिफरेंस कम्स कि अच्छा शेवरॉन चार्ज क्यों कर रहा है, क्योंकि शेवरॉन की जो प्रोसेसिंग है इट कॉस्ट देम मोर मनी। अब हमने ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू कर लिया, तो दिस इज समथिंग न्यू आई लर्न कि बेसिकली वहाँ पे एक बटन है जो हमारे ड्राइवर दबाता है, तो शेवरॉन की गैस आ रही है। बैक इन द डेज दे एक्सप्लेन मी कि जब गैस सेम डलती थी मगर वो एडिटिव्स ऐड हो जाते थे, शेवरॉन का अपना एडिटिव था, वो अलग लाइन से आता था। अच्छा। तो बेसिकली इज अ टेक्नोलॉजी। सो शेवरॉन का टेक्रोन आपने पढ़ा होगा, शेल का वी पावर है, एक्सन मोबिल का मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट दे ऑल हैव देयर ओन research of that one byproduct which they're adding into the actively fuel जो है। Unbranded उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई एडिटिव्स एडेड नहीं है। आप अगर कभी ट्राई नहीं करना, मगर अगर कभी करो तो अगर आप अनब्रांडेड फ्यूल डालोगे यू विल गेट लेस माइलेज ऑन द कार। Really? Yeah. Even on the It burns cars more. जो कि शायद कुछ लोग कहते हैं कि जो कुछ सेडान्स हैं जिसमें शायद वो इतनी ब्रांडेड गाड़ियां नहीं हैं, उसके बावजूद because it burns faster. It burns faster. It will mess up your engine, you know. आपको नॉकिंग की आवाज़ आ जाएगी अगर आप गलती से कभी गाड़ी में अगर जहाँ पे प्रीमियम डालना हो तो सुपर, अगर आप वहाँ पे अनलेटेड डाल दो 102 दफ़ा तो यू विल स्टार्ट हियरिंग इंजन नॉकिंग। इट्स लाइक अ टक 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 साउंड। इट हैपेंड टू मी, राइट? सो this is where the difference is on the price. Even if it's not a high end car. No. Test it. Anybody who's listening to this, test it. मैं लोगों को ये बोलता हूँ यार, जो आप 10 सेंट बजाने जा रहे हो ना, literally in the long run you're going to start spending that money on the maintenance repairs of the vehicle. From a business point of view, I make more money on unbranded. Why? $2 की गैस पूरा अमेरिका बेच रहा है, like Shell, Chevron, मैं $1.80 की बेच रहा हूँ, मगर मैं फिर भी 20 cents profit बना। It benefits me, but I'm very much against unbranded fuel. Not because कि मुझे personally पसंद नहीं है. I want to have a company where all my locations are branded. I have big brands, Shell, Chevron. So it's like a pride thing also. Like, okay, we only carry branded fuel, and it does help us business wise too, because and it also depends on the location. अब हम लोग साइप्रस में रहते हैं, people simple है, जिसने सुपर डाली है ना वो प्राइस नहीं देखेगा, मगर अनलेटेड वाला देखेगा। क्योंकि जो सुपर चला रहा है ना वो गाड़ी वही चला रहा है, उसको प्रॉब्लम ही नहीं है कि गैस कितने की बेच रहे हैं। तो आप नोट करना कि बिटवीन प्रीमियम अनलेटेड गैस, बिटवीन सुपर गैस, समटाइम्स इट्स $1.50 गैप, मगर कॉस्ट के अंदर सिर्फ 30 या 35 सेंट्स का डिफरेंस होता है। एनएफसी कैलिफोर्निया तो $3-4 का डिफरेंस। अब कैलिफोर्निया में क्या है, रेगुलेशंस आते हैं, टैक्सेस आर डिफरेंट, कॉस्ट सब टैक्स, ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है। सो आप LA जाओ, वेगस जाओ, न्यू जर्सी चले जाओ, वहाँ पे फ्यूल प्राइस इज ऑलवेज हाई, क्योंकि द स्टेट ऑल्सो एड्स टैक्सेस ऑन इट। तो अगर हमारी बेस प्राइस, अगर मैं आपको बेस प्राइस गैस की बताऊं बिफोर टैक्सेस, इट्स लाइक $1.42 अभी की। तो वो जो बाकी थ्रू आउट यूएस है, अच्छा, को बैरल प्राइस है ना वो, बट देन देयर इज वो आपको चार्ज करेंगे डिस्चार्ज फी है, देन एनवायरमेंटल फी है, ये सब गवर्नमेंट को जा रही है।
तो जो हमें शेवरॉन बेच रहा है या शेल गैस बेच रहा है या जो भी ब्रांड बेच रहा है इवन अनब्रांडेड, वो सारी वो फ्यूल डाल के करें बिकॉज दे आर पासिंग ऑन टू द गवर्नमेंट एंड द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या जो भी TCQ बोलते हैं, इट्स लाइक एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट फॉर द पम्प्स एंड ऑयल एंड गैस. सो वरना बेस गैस तो लाइक देयर इज नथिंग. सो यू आर, और कैलिफोर्निया का ज़्यादा इसलिए बिकॉज वहाँ का टैक्स रेट ज़्यादा है. Okay. So it's multiple factors into it. अच्छा, as we previously gas station businesses were considered to be very lucrative in terms of कोई अगर average बंदा आता था वो अपने आप में excel कर लेता था even if he is having one gas station or so. Yeah. लेकिन अब हमने देखा है there are so many technicalities and people like you are excelling, but the people जो कि एक average gas station को अगर वो लेते हैं या तो नुकसान में होते हैं या they end up spending their entire savings एक gas station को buy करने में. How do you see this happening and what are some of the common mistakes people do? People lie a lot. So the buyer or the seller? The seller. Buyer तो बेचारा buyer को, people lie a lot. I go through this even within the vicinity of like people know what Panthers Petroleum is doing, this and that. They will come. हमारी तो इतनी 80,000 की सेल है. अब क्या होता है, नए लोग जो आते हैं ना, and again I have done that mistake myself, right? Okay. सही है, मुझे पता ही नहीं था कि यार उसने आगे बोल दिया, कुछ वेरीफाई नहीं किया. अभी तो like the way we do it, there are multiple factors. उनसे बोलो यार हमें आपने 6 महीने की इन्वॉइसेस दे दो. We want to see how much we purchasing. अब आप दिखा रहे हो कि $1,00,000 की सेल कर रहे हो, तो आपने अगर 30% मार्जिन पे भी काम किया तो 70,000 का माल तो खरीदा होगा ना. चलो 70 का भी बेनिफिट दे देते, 50 का खरीदा होगा क्योंकि एग्जिस्टिंग इन्वेंटोरी भी थी. पीपल डोंट लुक इनटू दैट. फिर लोग झूठ बोलेंगे नहीं वो हमने थोड़ी कैश सेल्स रिंग कर दी थी. इट्स इलीगल टू डू दैट टू बिगिन विद. अब क्या होता है कि प्रॉब्लम इज़ जो नए लोग आते हैं, दे जस्ट कम, दे कम विद मनी एंड दे जंप ऑन टू इट कि हमारे पास पैसा है यार. एंड आई नो पर्सनली एक्चुअली उधर भी पीपल लाइक जिन बेचारों ने ऐसे पैसा लूज़ किया. बट माई प्रैक्टिस इज़ एंड आई टेल पीपल पहले जाके आप जॉब कर लो, 1 साल जॉब करो, लर्न हाउ द बिजनेस वर्क्स. Okay. सही है. आई हैव डन दैट. मैंने ये करके भी मिस्टेक्स की थी. अच्छा, you have mentioned in one of the podcasts, ये इससे ही एक connected question है जिसमें आप वारिद में पाकिस्तान में थे, यहाँ पे आके you were having a good job and then you shifted to the gas station job. तो ये shift के बारे में तो हम आएंगे. तो ये बताइए कि आपने भी इसी वजह से गैस स्टेशन पे काम किया? यार मैंने तो गैस स्टेशन पे इसलिए किया था, जब नया नया आया था तो मैं, क्योंकि जब लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते ना, दिस इज द मिथ कि if people are not having any job they usually go for gas station. नहीं मेरा मिथ वो नहीं था. मेरी तो बहुत अच्छी कॉर्पोरेट जॉब थी, सूट पहन के जाते थे. आई यूज्ड टू लिव इन द हाइट्स एरिया, वहाँ पे ऑफिस भी उधर ही थी 296 के ऊपर. सो आई हैड अ वेरी गुड जॉब, आई वाज गेटिंग पेड गुड. मेरी रीजनिंग ये थी कि एनी टाइम आई वेंट टू एनी स्टोर, मुझे वहाँ पे देसी बंदा नजर आया. तो मुझे एक चीज़ डेफिनेटली पता लगी थी 1.5 साल के अंदर कि हमारे लोग यहाँ पे कि मेहनत करते हैं, ये उस काम में जाते हैं जहाँ पे पैसा होता है. सो ये जो परसेप्शन है कि नहीं यार लोगों को जॉब नहीं मिली तो इसलिए, अमेरिका इज़ अ ओपन मार्केट यार. लाजमी नहीं है कि आप गैस स्टेशन पे काम करो तो वो बनेगा. आप टारगेट पे जाके काम कर लो. पीपल फ्लरिश विद इन द कंपनीज एंड बिकम सी लाइक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स और उस वहाँ पे आपको पैकेजेस में. माई रीजनिंग ऑफ डूइंग गेटिंग इनटू दैट जॉब वाज क्योंकि मुझे बिजनेस लेना था ये, और मुझे ये पता था कि हमारे लोग कह रहे हैं तो उसमें पैसा है. बिकॉज देन मैंने 2-3 लोगों के लिए काम किया, दे वर लोडेड लाइक फ्रॉम फॉर अ यंग गाय 23-24 ईयर्स ओल्ड. आपका बॉस भाई एस क्लास के अंदर आ रहा है. पाकिस्तान में तो कभी देखी भी नहीं थी व्हेन आई केम, अभी तो बड़ी कॉमन हो गई है वहाँ पे भी. सो इट वाज लाइक कि अच्छा यार, मगर मज़े की बात ये थी कि वो आपको यही बताते थे यार ये वाला बिजनेस नहीं करना, इसमें पैसे नहीं है. तो मेरी एक्चुअली क्यूरियोसिटी उससे और बढ़ गई कि यार ये बंदा मुझे आगे कह रहा है कि नहीं करना, बट ही इज़ लिविंग अ ग्रेट लाइफ, अच्छे घर में रहता है, शुगरलैंड में रह रहा है, यू नो लाइक. सो these were the factors which really got me interested into this business. और जब मैंने काम करना शुरू किया तो ट्रस्ट मी उधर भी पैसा बनता है, आज भी बनता है. इट जस्ट डिपेंड्स हाउ यू रन योर बिजनेस. कल मैं नाम नहीं लूँगा, जिनसे मेरी बात भी हो रही थी, उन्होंने कहा मुझे गैस स्टेशन करना है. मैं कहा आप 8 घंटे की शिफ्ट करोगे? मैंने 10, 12, 13, 14 घंटे नहीं बोला. उन्होंने कहा नहीं वो मैं नहीं करना. मैं कहा फिर आप गैस स्टेशन नहीं करो, बिकॉज आपको लेना है एक स्टोर, आपको बनना है बॉस बन के रहना है. सही है. इट्स नॉट गोना वर्कआउट. अगर आप महीने का 10,000 बनाना था, वो भी 10,000 में से आपने 4,000 अपने मैनेजर को दे दिए, बाकी 1-2 हज़ार आपकी शॉर्टेजेस ये वो उसमें हो जाएगा, एंड इट्स गोना कीप गोइंग डाउन. वी गो थ्रू दिस टिल डेट. अभी स्टोर्स एक्वायर करते हैं, वी गिव द चांस टू द पीपल हु आर वर्किंग देयर, मगर कितने लोगों को हम निकाल देते हैं 1-2 महीने में, बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रिक्ट विद इन द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी के पेपर वर्क अपलोड करो, ये सबमिट करो. तो जिन लोगों को विद इन ये सब करने में प्रॉब्लम होती है, देयर इज अ रेड फ्लैग इन इट. कमिंग टू द क्वेश्चन अगेन, जो हमने बात करते थे, लोग जो मिस्टेक्स करते हैं उसमें आपने आइडेंटिफाई किया कि वो इनवॉइसेस नहीं मांगते, इसकी वजह से उनको ये वाली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. अच्छा, जो अभी लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं गैस स्टेशंस के साथ, अपने यूएस में कहीं पर भी कर रहे हैं, क्या वो कर सकते हैं फॉर अ बिगनर? अगर आप बताना चाहें उनके लिए, दे वांट टू गेट रिड आउट ऑफ इट, एंड आपको पता है कि कितनी जल्दी लोन्स चढ़ते हैं आपके ऊपर व्हेन यू आर ओनिंग अ गैस स्टेशन, मॉर्गेज है आपकी, तो क्या करना चाहिए उनको इन ऑर्डर टू यू नो?
यार अभी ease their अगर problems. देखो आपके पास एक स्टोर है और एंड यू आर कीप टेकिंग अ लॉस ऑन इट, आई टेल यू वन थिंग, इफ यू नॉट गोना गो बैक एंड इंजेक्ट द मनी अगेन, इट्स नॉट गोना वर्क आउट फॉर यू, जस्ट एग्जिट, Okay. सेल इट. क्योंकि एक दफ़ा नीचे आ गया, आपको चेंज द अपीयरेंस ऑफ द स्टोर, यू नो, पुट अ साइन आउट देयर अंडर न्यू मैनेजमेंट, चेंज योर पीपल इन द स्टोर. बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि बहुत दफ़ा खाली ये नहीं कि बिजनेस नीचे क्यों गया, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. मल्टीपल फैक्टर्स, आपका इन्वेंट स्टोर वाज नॉट स्टॉक प्रॉपर्ली, your cashiers, your managers are not very. I've seen lethargic एक behavior भी होता है कभी हाँ, कभार they're not जो friendly. cashiers होते हैं Yeah, कभी. yeah, they're not friendly. They're not properly talking to the customers. मैं एक कस्टमर, मैं स्टोर पे जा रहा हूँ, मैं एक दफ़ा जाऊँगा, मेरे से कोई हाई नहीं बोल रहा. The business, the market runs on customer service, right? आप कहीं पे भी, and I'm one of those customers. If I go somewhere and they don't say hi to me or they're on a phone, You notice things. I tell them. I say, hey, I'm a customer standing here. Why are you on your phone? Because I'm that. You know, off the camera, I'm very straightforward on Yeah. things. But मुझे ये होता है कि मैं उन्हीं के भले के लिए बोल रहा हूँ. And people 99 times, 9 out of 10 And this is times, going to people help the acknowledge. employee as well. Yes. Excel करने में ये Of बहुत course, important of course. चीज़ है. अब अगर आपके एम्प्लॉय का एटीट्यूड ये है कि बस ठीक है यार 8 से 2 जाना है, उनको लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं है, दिस इज व्हाट दे वांट टू डू, गेट रिड ऑफ दैट एम्प्लॉय. आई एम सॉरी, यस आप कहेंगे कि यार ये बंदा बैठ के लोगों को कह रहा है निकाल दो, यस, मगर वो दैट पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू बिकॉज दैट पर्सन डज नॉट केयर. दैट उस बंदे को क्या है यार, उजैर एक निकाल fixed देगा, income एक आ रही है हाँ, उसकी, he's नहीं okay मगर with उजैर that. निकाल देगा, मैं याज के पास काम कर लूँगा, उजैर याज निकाल देगा, मैं भाईजान के पास जाके काम कर लूँगा. उनको फर्क नहीं पड़ता, बाउंसिंग अराउंड बिटवीन द जॉब्स. बट स्टिक टू गुड पीपल. सो कस्टमर सर्विस कम्स टू द पॉइंट. अभी मैं एक नया स्टोर लिया, मैंने अभी बल्कि अपनी टीम को भी बताया, मैं वहाँ पे लेट टाइम इवनिंग में आई वाज पासिंग बाय, सो मैंने उसको पूछा डू यू हैव XYZ प्रोडक्ट, और बोला आई डोंट नो. I don't know. I don't Okay. know. I walked around. Yes, they had it. Of course, we have it, right? So आप I don't know if you ever experienced it. वैसे कभी ट्राई करना स्टोर पे जाके, कैशियर आपको बोलेगा जिनको बिल्कुल उधर पड़ी होगी, लाइक इट्स चेक ओवर देयर, दे वोंट गो. आई रिमेंबर माई टाइम, हम लोग निकल के जाते थे कि वी ट्राई टू हेल्प द कस्टमर आउट, जस्ट लाइक यू पीपल ट्रीट यू एट CVS, Walgreens, Walmart. यार they go, that's part of the training. So your training is very important. First, second is inventory. Like I said, स्टोर में माल ही नहीं, लोग खरीदेंगे क्या? एक बंदा आके डेली की एक रेड बुल लेता है और एक उसको फ्लेवर चाहिए, वो एक दफ़ा आएगा, 2 दफ़ा आएगा. इट्स अ ट्रेंड, वी गेट डाटा फ्रॉम द कंपनीज. चौथी दफ़ा वो बंदा आपके पास नहीं आएगा, वो किसी और स्टोर पे जाने लग जाएगा. सो लाइक जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं अपने कोने के घर के स्टोर के पास जाता हूँ, वो मेरा भी नहीं है, बट इट्स कन्वीनियंट फॉर मी. द गैस स्टेशन इज कॉल्ड कन्वीनियंस स्टोर फॉर अ रीज़न. If you're gonna make it inconvenient for them, why anybody wanna come and do business with you? You gotta look clean. Restrooms are very important. In USA आपको पता है कि अभी तो यार मोटरवे पे मैंने देखा पाकिस्तान में, वहाँ पे भी रेस्टरूम के वो 100 रुपये बहुत ज़बरदस्त है. Like अगर वो पेमेंट भी ले रहे हैं, so it's worth it because back in the days I remember आप एंटर नहीं हो सकते थे, राइट? अब बकीज यहाँ पे जो बहुत बड़े स्टोर्स हैं यार, वो पूरे I-10, आप यहाँ से सैन एंटोनियो जाओ या wherever they are, they have billboards and all what it says on it, clean restrooms. This is all what they are promoting. Yeah. We have clean restrooms. That's it. And their restrooms are clean. As you mentioned about Buc-ee's, this is one of the hugest, जिसे कहते हैं, chain है US के अंदर. According to your perspective, do you think it's a good business for them? They are doing right now. They're killing it. Of course, I'm from the industry, so I know how he started. When Buc-ee's के बंदा जब start करा था back in the day, so people thought he's crazy. कि तुम्हें वहाँ पे 50 पंप लगाने हैं, कौन आके 50 गाड़ियाँ वहाँ पे करेगा. मगर अब आप आज के टाइम पे देखो कि बकीज़ के ऊपर अगर 100 पंप्स भी लगे हैं ना, तो यू स्टिल एंडेड अप वेटिंग टू गेट इन अ लाइन टू फ्यूल. सो आई थिंक अगेन उज़र भी इट्स आइडिया बिहाइंड व्हाट यू वांट टू डू, राइट, एंड हाउ यू वांट अचीव इट. उसको लोगों ने लेट डाउन करते, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि आई बीन लेट डाउन अ लॉट इन माई लाइफ बाय पीपल, बट ट्रस्ट मी, आई ऑलवेज टुक इट एज इन अ पॉजिटिव वे. मैं जब लोगों को बोलता था कि वन डे आई विल हैव दिस मिनिस्टर, वो कहते पागल है, कहाँ से करेगा, नहीं होएगा, राइट. अब कर लिए, अब कहते हैं नहीं कुछ गलती कितना हो रहा है, लाइक ही मस्ट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग. सो पीपल ऑलवेज गोना लाइक demotivate you, criticize you. What matters is how you take it. If you're going to definitely take it in a negative and be like, oh yaar, you're never going to be successful. अच्छा यास भाई, you are into this business and you have excelled in this business as well. तो आपको ऐसा लगता है कि अब शायद आपको इतनी या अपने आप को आपने इतना विजिलेंट रखने की ज़रूरत नहीं है. नाउ यू आर रिलैक्स्ड, आप अब पीछे बैठे हुए हैं क्योंकि अब चीज़ आपने बना ली है. यू आर स्टिल द सेम जो आप शायद डे 1 पे थे जब आपने बिजनेस एक्वायर किया था. मैं वैसे ही हूँ यार, एंड आई थिंक आई वर्क अ लॉट इन माय ऑफिस, इन माय कंपनी. अभी मुझे पाकिस्तान जाना था, आई हैड मल्टीपल क्लोजिंग्स गोइंग ऑन, आई वाज वर्किंग टिल 11 PM, 12 बजे.
12 बजे तक काम करूँ, सुबह 7 बजे ऑफिस जा रहा था, पाकिस्तान जाके भी मैं काम कर रहा था. आई एक्चुअली स्टेड अप टिल 4-5 in the morning. So I think being a leader, if you gonna take a back step, you're gonna step back, you're gonna have a problem because आपकी टीम ही नहीं करेगी. वो कह रही है जब लीडर ही नहीं कर रहा है. Actually, I work more now than what I was working when I had 1 store, 2 stores, 3 stores or 5 stores. और अभी खाली store नहीं है. There are multiple companies. I'm dealing with multiple people. I'm dealing with an accounting team separately. Then I'm also at the same time looking at the current operations. मेरी टीम बहुत ज़बरदस्त है, but they still reported back to me. मुझे हर चीज़ पता होती है. अभी रास्ते में भी I was on a call, there was an issue. So I was talking to hey भाई, Okay. he's our VP. So I was like, hey भाई, what we need to do tomorrow, let's sit down and sort it out. So I think being a businessman, आप किसी से भी पूछोगे, work never ends. And the day you decide it's going to end, you're going to end. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात की आपने. एंड एज सून आप जब डिसाइड कर लेते हैं कि अब आप रिलैक्स करेंगे तो आप वाकई रिलैक्स कर Relax जाएंगे. हो जाओ, yeah. दैट्स व्हाट आई बिलीव. लेकिन प्रायोरिटाइज करने की अगर हम बात करें, बैक इन दोज डेज हमने ये चीज़ बहुत सुनी है कि अगर आप मल्टीपल चीज़ों में होंगे तो आप एक पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे. बट दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स आर वर्किंग दीज डेज. पीपल आर डूइंग मल्टीपल बिजनेसेस एवरी नाउ एंड देन. तो मुझे इसके बारे में बताइए कि यू आर इनटू होलसेल एज वेल, यू आर इनटू मोटर स्पोर्ट्स एंड सम अदर वेंचर्स टू. प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं आप इन सारी चीज़ों को कि इसको इतनी रिक्वायरमेंट है या इतना टाइम मुझे अब इस वेंचर के ऊपर लगा? So I only look at it until I acquire it. सही है. मगर जब मैं एक्वायर कर रहा होता हूँ, लेट्स से एक गैस स्टेशन की बात करते हैं कि मुझे एक गैस स्टेशन लेना है. आई डू माई ड्यू डिलिजेंस ऑन इट कि अच्छा ये है. उसमें रन डाउन स्टोर्स भी आते हैं. आई प्रेफर पिकिंग अप रन डाउन स्टोर्स बिकॉज मुझे पता है इस रन डाउन स्टोर के ऊपर, जैसे आप कह रहे थे ना, लोग वो हो जाते हैं. वी गो बैक, वी स्पेंड मनी ऑन इट. You have seen most of our stores. We go and we spend money, we renovate them, we put more stuff into it. So I think, and my team is very important. Abhi humne last quarter mein, you knew, and I'm sorry guys, I'm keep saying you knew because I do meet this guy a lot. Yeah. And he usually know like what's going on. So we acquired like around 20 sites in 3 months, right? Magar maine usko acquired, jaise we went under contract, I told my higher management team in the office that I need 4 supervisors now. Which means start building the team, pull the managers out which are capable of like getting into supervisor position. And yesterday I met him in my office. You know? Again, coming back to the same part जो आपने starting में कहा था कि never cut cost. Never cut cost. So my payroll, actually I was actually mind blown because I don't look at these things on daily. तो अभी जब ये last month like the accounting firm came and they're like, you know, यार आज भी आपका सबसे ज़्यादा जो expense है ना वो payroll का है. मुझे लगा मेरी payments का होएगा, but it was the payroll. And you don't realize it, but is it worth it? 100% every penny worth it because जहाँ पे आप कट कॉर्नर्स करोगे, बंदे कम करोगे, आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, परफॉर्मेंसेस है स्टोर्स के ऊपर, वो भी नीचे आ रही है ना. तो अगर आप पैसा अगर आपका बनी बिजनेस से रहे और वहाँ पे चलाने वाले लोग नहीं, तो हाउ यू गोना जस्टिफाई दैट? टू रादर स्पेंड दैट मनी एंड लेट देम गो मेक इट इन अ वे कि दैट लोकेशन कैन मेक द मनी टू यू. सेम वे अदर बिजनेसेस, लाइक आई मेंशन्ड बिफोर, कोई भी नया बिजनेस जाता है, वी असाइन अ टीम. My actually job is the minute I assign the team, मैं उसके अंदर जाके टांग नहीं डालता फिर. I don't go and poke them के Asan, you cannot do this. Don't let Hasib do this. Like these are the people who run the stuff. Who decide how it's going to happen? I always decide that. Okay, तो यहाँ से ये बात समझ में आई है कि before acquiring a business you really are into that business and उसके बाद जो है आप अपनी टीम के ऊपर रिलाई करते हैं. उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आएगी then you I get involved into it again. मगर अब जैसे नया बिजनेस है, उसकी जो SOPs हैं, जो भी उसकी do's and don'ts हैं, I actually till date decide that. So अगर कोई नई लोकेशन भी आ रही है, of course गैस स्टेशन में my team is so they know कि अच्छा Ayaz want this location कि यहाँ पे पेरोल इतना होना चाहिए, इस तरह की मर्चेंडाइजिंग चाहिए. अब जैसे होलसेल लिया है, so I knew how we have to do it. तो वी डिसाइडेड दैट इन द ऑफिस. उसकी एक अलग टीम है, मैं जाके कुछ नहीं करता, मुझे बता, दे रिपोर्टेड बैक टू मी. बट अब जो उसका पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको आपने रिपोर्ट करना है, मैं अपना डिसीजन उस बंदे को बताता हूँ, मैं खुद जाके नहीं बोलता हूँ. ओके, राइट. इट मेक्स अ बिग डिफरेंस बिकॉज द मिनट यू बिकेम डायरेक्ट विद योर एम्प्लॉई, वो आपका जो मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट का बंदा ना, वो बंदा कहेगा, उसको बाईपास करके दैट पर्सन ऑलवेज गोना ट्राई टू कम टू मी. एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल एग्री विद मी ऑन दिस, जो भी बिजनेस ओनर्स हैं. बट अनफॉर्चुनेटली बिजनेस ओनर्स लाइक टू डू दैट टू. वो पॉलिटिक्स होती है, अच्छा यार उसने क्या किया, तुम मुझे उसके ऊपर स्निच करो. मेरा एक्चुअली उल्टा हिसाब है. अगर इफ़ यू कम एंड स्निच ऑन somebody on me, मैं एक्चुअली आपसे नाराज़ हो जाऊँगा. बिकॉज आप मेरे पास the company policies, you cannot come and talk to me about that. There is another person sitting there he or she needs to address to the matter. पर्सन का रोल उसकी वैल्यू कोई नहीं है, उसकी वैल्यू कोई नहीं है. उसको फिर उसको आप इतना ज़्यादा जो पैसे दे रहे हो क्यों दे रहे हो यार. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि
everybody needs to do what they're doing, but also take care of your people. I do take care of my people. Like hopefully what they tell me, they're very happy. I take care of them in a way. They have good packages. They drive nice vehicles. I make sure they're comfortable. I make them feel like it's their company more than it's my company. You know, and trust me, यार अभी मैं कहीं पे travel करूँ, मैं कुछ भी हो, like my team stands out. Yeah, they get chewed out. They get chewed out. You cannot even believe it, but that's my job. Actually, उनको पता भी है कि हम अगर आके यार उसको बोलेंगे ना कि यार ये कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था, 5 चीज़ें बताई हैं, मैं बोलूँगा ये छठी वाली तो ख़राब है यार. एंड इट्स माई प्रॉब्लम, बट आई डू इट ऑन पर्पस. दे नो इट कि ये जान के कर रहा है, बट आई मेक इट मोर चैलेंजिंग फॉर देम, राइट? कि अच्छा यार ये तो तुम कर ही रहे हो, वाई दिस इज़ नॉट हैपनिंग. So I think you always have to improvise, keep changing. I think a lot. I'm not going to lie to you. In my free time, all I think about is not party, because I don't do it. All I think about is कि अच्छा मैं और क्या कर सकता हूँ life में. Why so many different companies and why people are doing that. कि God forbid एक market नीचे चलेगी, but there is another business you have which is going to keep you floating in between both the businesses. So the more cash flow, the more better chances you have to survive in any business out there. Achha, yes, don't break your cash flow. Absolutely, this is very important, and you should have multiple streams of income as well. Correct. This is very important, चाहे आप जो भी काम कर रहे हो. अच्छा, जो पेरोल होता है या पेरोल के अलावा भी हम डिसाइड करें, फॉर एग्जांपल एज एन एम्प्लॉयर इफ़ यू वांट टू गेट समवन ऑन बोर्ड, हाउ टू आइडेंटिफाई कि इसका ये पेरोल है या दिस इज समथिंग दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस particular person. अगर अच्छा लोकेशन as far as you are not underpaying or overpaying a person. So location का तो यार I think इतना से कर करके we kind of know like what this person is expecting, right? Locations का हमें पता होता है because we know कि अच्छा इतनी average sale चल रही है, it usually maintains, these are the expenses, this is the payroll budget. Managers का we have a set rate, we go by the time frame, and हम लोग ऐसे उठा के managers नहीं किसी को बना देते, we train them, वो पहले cashier होता है, फिर assistant manager to a manager and then a supervisor. So we have set roles के जो एक सुपरवाइजर को मिला है, आई डोंट डिस्क्रिमिनेट. जो एक सुपरवाइजर को पैकेज मिला है, दूसरे को भी वही मिल रहा है. अगर एक को $1,000 मेरा है कार अलाउंस, दूसरे को भी उतना ही मिल रहा है. आई एक्चुअली डोंट बाय एम कार्स ऑफ माई चॉइस. आई टेल हिम गाड़ी अपनी मर्जी की ले लो, पेमेंट हम करें. वाई? बिकॉज उनको चलानी उन्हें है यार. बट आई बिलीव के पीपल नीड टू बी हैप्पी. दे नीड टू लुक फॉरवर्ड कि अच्छा यार सुबह काम पे जाना, ठीक है, माई सवारी इज़ गुड, सही है, मैं अच्छी सवारी पे जा रहा हूँ, उसको मज़ा आना चाहिए. ये नहीं कि अब आपने अपनी मर्जी से जाकर करोला ले दी, उसको कैमरी चाहिए थी या उसको होंडा सिविक चाहिए थी. आई डोंट नो, राइट? सो दे नीड टू टेक इंटरेस्ट, दे नीड टू लुक फॉरवर्ड कि यार मैं सुबह उठूंगा, अच्छा चल मैं अच्छी गाड़ी चला के काम पे जाऊँगा. दिस इज़ माई वे ऑफ मोटिवेशन. वाई आई डू दैट? बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम आई वाज एन एम्प्लॉय एंड आई यूज्ड टू फील दिस थिंग्स कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरा बॉस ये भी नहीं कर सकता मेरे लिए, बिकॉज अदर कंपनीज आर डूइंग इट, राइट? सो payroll is defined based on literally how much efforts you're putting in, how much knowledge you have. If you are going to put yourself in an employee's shoes, तो हम ये देखते हैं कि कभी कभार लोग अपने आप को समझते हैं कि they deserve a lot more. तो as an employee आप क्या किसी को suggest करेंगे कि this is how you should know your worth, के ये आपकी एक worth है, ये इतनी आपकी productivity है, तो आपको ये income ही. I'm smiling for a reason because जो बंदा मुझे आके ये कहता है ना कि अगर मैं कंपनी में रहूँगा, oh I did so much for you, और मैं कंपनी में रहूँगा तो या मैंने ये किया तुम्हारे, उसको मैं निकाल देता हूँ. I don't deal with that person because उसका simple answer है, and I think I have said it multiple times off the record too. Steve Jobs मर गया, right? Apple का जो ओनर था. Apple made more money after he died. I'm gonna die one day, you know? So कंपनी किसी की वजह से नहीं चलती है. कंपनी चलती है if you have honest people in it. Nothing stops in life. Yeah, you have a pause और ऊपर नीचे hurdles आते हैं. So arrogance kills you, right? क्योंकि being an employer या being as a household, जैसे my father or your father, you know, like जब मेरे father की death होगी, but जब वो थे उनको पता था कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं. Head of the household को पता होता है कि what he or she या मेरा बच्चा क्या कर रहा है. तो as an employer, the company owner knows as well. तो you don't have to come and say कि मैंने ये कर दिया, भाई आपने मेरे पे एहसान नहीं किया है. बिकॉज हाउ आई लुक एट वर्क एंड बिजनेस, एम्प्लॉय ने मेरे लिए काम किया तो he or she doesn't owe me a favor. मैंने उसको पे दी, मैं भी उसको, we break even right there. मैंने पे किया, उसने काम किया, we break even. ना मैंने उस पे एहसान किया ना उसने. तो this is one bad practice and a lot of people do that कि मैं नहीं रहूँगा तो देखूँगा कंपनी कैसे चलेगी, ये तो सारी कंपनी गिर जाएगी, ये तो चलनी ही नहीं है, इसके तो स्टोरी ख़त्म हो जाने हैं. Fine, but I think Alhamdulillah, I have a very good team. I keep saying this. But do you think जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, जिधर आप पहले काम कर रहे थे, कंपनी को इफेक्ट हुआ था आपके छोड़ने के बाद? It did, but the company is still there. तो आपने उनको जाके क्लेम किया था कि मैं चला गया हूँ तो देखें I did not.
I did not, because they were saying a lot of things, because they were very unhappy me leaving, resigning, because I was running the company. They're good friends, still did. They're good friends. It was more of a dosi wala narazgi, then I let go. But uska मैं आपको आंसर इतना कर देता हूँ. When I was there, they were running around 30 stores. Right now they're running 2. They came out of operations. Okay. Because they So they have did moved their operations किसी और business में चले गए? no business वही है. They're all jobbers. They're a big company. But क्या हुआ कि they did hire people, but then they lost interest doing it in a way कि हमें ये करना ही नहीं है. Because a lot of people are coming out of retail as well, right? ठीक है. They focus, and mashallah, it's a big company. They're reputable. They're good reputation out there. They're doing great. अब उनके oil से इतने पैसे बने हुए कि हम day to day operations में क्यों हैं, right? But it did देखो effect पड़ता है आप पे. But मेरे से क्यों थोड़ा ज़्यादा पड़ा था, because when I was running it as an owner. Okay. मैं उनको जाके बताता भी था ये हो गया, वो कहते थे यार तूने देख लिया, बस सही है की बात है. और I used to tell them कि भाई देख लो, what if I leave? और वो कहता था मेरा दोस्त है, वो कहता था तूने किधर जा रहा है. So it's like, of course he was upset, but I gave my 2 weeks properly. Even after that I helped him. Till date मुझे अलार्म की calls आ जाती हैं कि कोई पुराने लोग मेरे नंबर से, but he's a good friend. It does affect, but the mistake they did, I don't do that mistake. So मेरी जो top team है, मेरे पास उसकी replacement में दूसरे बंदे parallel company में काम कर रहे हैं. What I was doing when I was working there, they did not had a parallel guy who was going to take over and did whatever I was doing. So I have multiple people doing the same thing. कि अगर अभी मुझे आके कोई बोल देगा ना कि यार मैंने कल काम पे नहीं, no problem, thank you very much, that's the door, good luck to you, right? I don't make a beef out of it. I actually promote people. आपके operations affect नहीं होंगे? नहीं होगा, because we have multiple people, but again they were cutting the cost. Even being a big company, I don't do that. I'm not shy of paying somebody, because बात वही आ जाती है कि आपने 4,000 अभी बचा लिया महीने का. If somebody leaves, you're going to end up losing $40,000 by wasting the time in training somebody else. Yazvi, what is the future of motorsports in Pakistan, and in terms of आपने जैसे entry की अभी motorsports के अंदर, you are into Formula racing right now, and you have talked on multiple platforms about this. लेकिन आपने क्या सोच के इस स्पोर्ट्स के अंदर एंट्री ली? बिकॉज इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव स्पोर्ट, एंड इट माइट रिक्वायर योर business, the amount that you earn from different businesses, वो शायद आपको इस बिजनेस में भी लगाने पड़ सकते हैं और काफ़ी टाइम तक, क्योंकि इट्स विन और लूज गेम. कैसे देखते हैं सिचुएशन? पंजाबी में मुहावरा शौक दा कोई मुल नहीं है. सही है. So I hope you understand what it means. बिल्कुल बिल्कुल. So growing up, I always liked Formula 1. सही है. And you can even check my phone. I only have 2 apps in my phone sporting के, एक Formula 1 का और एक क्रिकेट का है. These are the 2 sports I was into it. I liked it. I kept up with it. Then मेरा बेटा हुआ, and then he is into sports. So of course I used to, I don't know, many people say कि हमें बेटे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है. मुझे एक्चुअली अपने बेटे को Formula 1 ड्राइवर बनाना है. Simple is that, right? Interesting. Simple. अब मुझे नहीं पता उसको क्या करना है, but more likely he's into it. You know, he rides bikes, he drive cars, like go-karts and everything. So I think the opportunity came on a table in a way के, and I'll tell you one thing, most of the businesses I have acquired, like signage company, trucking company, construction company, मैंने मजाक में बंदे मेरे से bidding करने आए थे, मैं कहा यार कंपनी भेज दो, and they said okay ले लो. So same thing happened with motorsport. The Arshia, she's our driver, she's great. She came for a sponsorship. All I said, what it takes to buy a team or build a team. She helped us out a lot, you know. It's costly, yes, but again, I think not every business is going to make you money. In totality of it. No, but in terms of sponsorships, I've seen a lot of sponsors on your car. और ये पहले सीजन के लिहाज से it's a big thing कि उसके ऊपर इतने sponsors के लोगो लगे हैं. So मैं आपको इतना बता देता हूँ कि हमने जितना खर्चा किया ना वो मैंने रिकवर कर लिया है. Wow. So this is how you do it, right? और अभी आपको पता है कि because you cover a lot of on that part too. हमारी एक ही रेस थी लास्ट सीजन में जब. So going into March, prior to that, I'm in talks with some big companies and do it. And then I think it's going to work out. Again, it's the structure how you do it. So अगर आपके बिजनेस ने पहले 2 साल में आपको पे कर दिया ना, what else you want? And motor sports के ऊपर मैं ये भी बात यहाँ पे mention करना चाहूँगा कि the response that you are getting so far, क्योंकि I have seen, and in fact there were some videos uploaded as well जिसमें कुछ बच्चे जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं मोटर स्पोर्ट्स के अंदर. So they are coming as well for a new company. It's a big thing कि you have new drivers as well. तो आपकी गाड़ी की टेस्टिंग भी हो रही है, एंड आपका स्पोर्ट्स का जो आपने डेवलप किया ब्रांड वो भी आगे स्प्रेड हो रहा है, उसका नाम भी जा रहा है. And I think to be honest, like sometimes क्या होता है कि like you don't realize the impact of things you do in life, right? I get approached by people कि यार हमारा बेटा है, इसको भी ट्रेनिंग करना, we're ready to, even we're willing to pay you. So
going into this season, what we're gonna do? कमिंग बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म कि ये शौक था आपका, लेकिन वही शौक। शौक जो है इज जनरेटिंग रेवेन्यू एज तो वेल एट देखो द सेम सबसे टाइम. मजे की बात यह है कि आपका अगर नॉट इवन इन विद दिस आई टेल पीपल डू व्हाट यू रियली लाइक बिकॉज व्हेन यू लाइक इट यू कैन मेक मनी आल्सो एट द सेम टाइम. सो मेरा शौक अभी भी पूरे हो रहे हैं. It's a big thing यार, like owning two Formula cars. It's not a joke. Absolutely. So yeah, like it's a dream for many people because it was a dream for myself as well, right? कि owning a Formula car, like अभी अब ले लिया तो मैं जाके देखता भी नहीं हूँ. Because you know like इंसान की वही है कि अच्छा यार फरारी लेनी है, फरारी का ना वो कुछ भी लोने आप 10 दिन का शौक होता है या आधा होगा महीने का, उसके बाद कहते हैं ठीक है यार you take it for like ठीक है we already have it. So I think शौक है मेरे. I really want my kid to enjoy it and if he make it to the level it'll be good, beneficial, but at the same time we of course I want to try to make money out of it too. I'm a businessman at the end of the day. So you don't keep देखो आप जेब से पैसा डाली जाओगे ना एक दिन वो खत्म हो जाएगा, राइट? बट इन ऑल केस ठीक है, Sustainable आपने भी you project have to करना है, keep it yeah. at least break even. At least try to, even if you're in a loss, try to bring the loss down to the bare minimum, right? So I think Formula One is like we're gonna do great in it, to be honest. Yasby, last year you also jumped into a new sport, sponsorship के लिए. New तो नहीं कहेंगे, you are part of that Yeah, sport. आप yeah. खुद भी खेलते हैं क्रिकेट को and you sponsored one of the PSL teams as well. What was the reason behind that? क्रिकेट का तो मुझे पता है कि शौक था, लेकिन ये PSL वाली चीज़. जैसे 2-3 चीज़ें थी उसमें. जब PSL आया था ना तो मैं जॉब करता था, तो तब वैसे था यार एक दिन पैसे आएंगे ना PSL की टीम खरीदेंगे. तो जब पैसा है तो टीम तो बिक नहीं रही थी, हाँ. तो मैं क्या जाके स्पॉन्सर कर देते हैं. सो वी डिड स्पॉन्सर्ड फॉर मल्टीपल रीजंस एंड पीपल थॉट आई एम क्रेजी, आई लिव इन अमेरिका, पाकिस्तान में जाके टीम स्पॉन्सर कर रहा है, व्हाट बेनिफिट यू गोना गेट आउट ऑफ इट. ट्रस्ट मी, दैट वाज द बिगेस्ट मार्केटिंग आई हैव डन फॉर माय कंपनी ब्रांड out, like by far by I anything was talking else. to one of the PCB officials as well, and they were like, the interest that we see of overseas Pakistanis अब and US से खास तौर से आपका भी एक उसके अंदर मेजर पार्ट बनता है, क्योंकि एक आपने उनको अपॉर्चुनिटी दिखाई कि अच्छा अगर यूएस बेस्ड कंपनी वो स्पॉन्सर कर सकती है या वो उसका पार्ट बन सकती यार है अभी टीम का. 2 टीमें बिकी हैं, दोनों ओवरसीज बंदों ने खरीदे. एक जी. ऑस्ट्रेलियन, एक डैलस के बंदे हैं. और आई विल गिव यू सम फीडबैक. तनवीर अहमद, यू नो एवरीबडी नोज हिम एंड ऑल दैट. वी आर लुकिंग इनटू गेटिंग समथिंग राइट नाउ. PCB wants me to buy a team. I won't take the names and all that right now, but I'm in talks on this. So क्या opportunity opens opportunity, right? This last year actually, sponsor से पहले पाकिस्तान में किसी को नहीं पता था who Chaudhry Ayaz was and what is this Panthers Petroleum, right? PCB is reaching me out कि आप bidding में आए करें. I was going to be a part of the initial bidding too, but I was so busy with my own business, so I really, to be honest, really didn't अच्छा यार look into that like that. You are a businessman as well. जो teams अभी हमने ये रणवीर भाई से we had a recent podcast with him as well, and we asked him the same question कि जो numbers हैं कि do we think कि वो numbers सही हैं? According to him, they were not looking very good. तो आपको ये numbers कैसे लगते So हैं? I'm smiling for a reason. Whatever he said is 100% right because देखो यार at the end of the day मैं बहुत simple. मतलब you are also not satisfied with the numbers. I'm not. मैं उसको सिंपल आंसर करता हूँ. आपको फेमस होना पाकिस्तान में, we on a team, go for it. At what cost? Maybe you're gonna lose in 10 years shy of $30-40 million. For me being practical, मुझे फेमस होने का शौक नहीं है. सही वो अल्लाह ने इज्जत देनी होगी. We have enough. I don't want to have a tag. Being famous is a byproduct for you. हाँ. सही है. So अब मुझे कोई तमगा इम्तियाज नहीं मिलता ना कि जी मैं PSL में टीम ऑन करता हूँ. At what cost? $30-40 million loss. I think it's unbelievably insane numbers. So I think no यार, I mean आपने अगर US डॉलर में करें 6.4 million dollar की टीम है, $3-4 million आपका ईयरली खर्चा है उसको रन करने का. PCB अगर आपको 3-4 million दे भी देगा, एक आपके पास शर्ट है जिसको आपने बेचना है, आधा पजामा है जिसको आपने बेचना है, सही है. कितने का स्पॉन्सर ले लोगे? 2 million का ले आओगे, ठीक है. 3-4 million आपको PCB ने दे दिया, 6 million हो गए. बाकी पैसे कहाँ से लेकर आओगे? कितनी मर्चेंडाइज बेच दोगे? पाकिस्तान में 2 मिनट में ना काउंटरफिट शर्ट यू के 20-20 30-100 रुपए की बिक्री होगी वहाँ पे, राइट? सो आई थिंक प्रैक्टिकली इज टू मच इवन कंपेयरिंग टू द प्रीवियस टीम्स वो जितने की बिकी और ये जितने की है. तो नो, आई वेरी मच अगेंस्ट व्हाट हैपेंड. और मजे की बात ये है कि जो टीम ले तो लिया उन्होंने, पीछे 5-5 पार्टनर्स बैठे हुए अब. तो आई थिंक I'm sure whatever they have, and it's funny actually, me and Tanveer were talked about it Saturday, Sunday, and you know like so we were talking about this कि हाँ आप individually decide अभी कर लो. 6 million की टीम लेनी है, 5 पार्टनर आ जाओ, ठीक है यार, साल का $5-5 लाख का नुकसान ले लेंगे, उसको राइट ऑफ कर देंगे, अल्लाह खैर सल्ला. That's it. It works out for you. But if you want to be an owner of a team and make it work, or you're not going to make any money out of it. अगर आपको लोग कह रहे हैं कि 3-4 साल में आप पैसा बना लेंगे, आप 7-8 साल में भी नहीं बनाओगे. Okay. There is no break even after 7 years. अच्छा याज भाई, talking about some trophy achievements, what do you think you
are having those trophy achievements with you right now? In terms of business कह सकते हैं या commodity कह सकते यार हैं. commodities हैं. I own multiple sports cars, Hmm. bought a nice house, live a good comfortable life, alhamdulillah. I'm there for my family and friends, right? Plus business wise, yeah, everything is an achievement, to be honest. Like achievement in a way, like I mentioned earlier, people, you know, like they put you down. They want to see you down. Trust me, you go up, they will like, they want to make sure how to bring you down, right? Criticism is always going to be there, but I always take criticism as very positive, right? मुझे होता है अच्छा यार ये कर रहा है ना, उसको मैं जाके मुंह से नहीं लड़ता. Go do something crazy in your life and build some empire and then shut them up like that. So I think that's the biggest achievement I have. Many people in from my past, you know, some of them. So the biggest shut up call I can even, you can, anytime anybody can give in to anybody in their lifetime is your success. So I think that's the biggest success. Like mashallah, we own multiple businesses. We own 61 gas stations in 2 years. We own a trucking company, wholesale, fuel jobbership, signage, construction. We acquired Tint World. We just buying one chip cookie, getting into that now. So it's like multiple things here. So these are all achievements, to be honest. you know. Yes, when you were working, what was that magical number जो आपको लगता था कि अगर मेरे पास ये number मैं reach कर लूँगा account में, savings में, so I'd be $1 good million. for life. That I was. used to think $1 million, and it's crazy. I think इंसान का desire बढ़ जाता है. मेरा desire पे, I'm not after money. I'll tell you one thing. I'm more after my goals, achievements, success. Once you have that money, automatically, money is very important. I'm not going to sit here and say कि यार मुझे तो पैसा पसंद नहीं है. No, I love money because why you like money? Because you live comfortably. So I think अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया कि $1 million, you don't feel like अब goal हो गया कि $500 million कब आएगा अकाउंट में. So it's like, अच्छा, आपकी बात से मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ याद आई. अभी अक्षय कुमार ने अक्सर मेंशन किया है कि व्हेन यूज्ड टू गो टू हिज डैड इनिशियल फिल्म्स के टाइम पे, तो उन्होंने कहा था कि 10 करोड़ की अगर मैं फिक्स डिपॉजिट, इन इंडिया यूजुअली पीपल डू दैट, फिक्स डिपॉजिट, तो ये काफ़ी होंगे. कह रहे हैं देन आई गो टुवर्ड्स 100 करोड़, 1000 करोड़. कह रहे हैं वो बढ़ता जाता है क्योंकि ग्रीड it है. is, it is, Yeah, it is. नहीं, और ये मुझे लगता है ये समाव अच्छा भी है. उधर भी आप वो अपने ग्रीड लिए भी नहीं goal है, set करते वो हैं. ग्रीड भी नहीं, इट्स अ गोल. Yeah. एक्चुअली इट्स अ गोल कि अच्छा यार आपने $210 million. I'll tell you, my company is valued at $210 million Okay. at the moment. वाह. जिंदगी में नहीं सोचा था कि 1 million, मैं सोचा था 1 million अकाउंट में पड़ा हो ना, 5, 6, 8, $10,000 की जॉब हो, सो यू कैन लिव वेरी कंफर्टेबली, यू विल हैव अ गुड लाइफ, यू नो. आपके पास सेविंग पड़ी है, एक अच्छा घर है आपके पास, 2 अच्छी गाड़ियाँ हैं, यू नो. सो आई थिंक वो ग्रीड नहीं होती, वो आपके गोल्स होते हैं. तो वंस यू हेयर, फिर आप कहते हो यार मुझे यहाँ पे आना है, फिर यहाँ पे आना है, मगर उसके लिए करना क्या है? यू हैव टू वर्क मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर. तो आपका पीपल थिंक के यार जो बिजनेस मैन है ये तो बड़ी लेविश लाइफ गुजारते हो. आई गेट क्वेश्चन दैट आप ट्रैवल करें, ये करें, भाई वो करते हैं, मगर हम काम भी, मैं जो ट्रैवल करता हूँ ना, मुझे आगे डबल काम करना पड़ता है, बिकॉज आपका दिमाग आपके बिजनेस में हर वक्त लगा रहता है. नो मैटर व्हाट यू डू, यू ऑलवेज थिंकिंग, प्रोसेसिंग, ये कर लें, अब ये कर लें. लाइक दिस ईयर माई गोल इज टू गेट इनटू हॉस्पिटल्स, यू नो. आई वांट टू गेट इनटू हॉस्पिटल्स, आई वांट टू गेट इनटू डे केयर्स. ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि कभी, बट वो अब मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई है. आई मेड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शहरियर भाई नाम है उनका, यू नो, एंड ही इज़ एक्चुअली माई फाइनेंशियल एडवाइजर एज वेल एट द मोमेंट एंड ऑल दैट. सो ही इज़ डूइंग इट, ही इज़ किलिंग इट, एंड you know, so I'm not shy of explaining, telling people के ओ यार उज़ैर भाई का आइडिया था, तो नहीं ये तो मेरा ही आइडिया था. No, I got an idea, I picked on it, I'm going to learn from him. I told him straight up, he said यार याज़ भी आपको क्यों मना करूँगा. Achha, Yazbi, towards the end of this podcast, you have mentioned in one of the podcasts, and we have often talked about this as well, that there was a point in your life where you lost everything. Yes. And there is a point in your life where you achieved everything. Yes. तो इस बीच का जो टाइम होता है ये बड़ा मुश्किल होता है. लेकिन अब एक ऐसा टाइम है कि आपने बहुत सारी चीज़ें अपने साथ होल्ड की हुई हैं. आपकी तरह जो बाकी लोग हैं जिनके पास जो सेविंग्स हैं, जो वो काम कर रहे हैं, व्हाट इज़ दैट वन थिंग, और मे बी मोर देन वन, जिससे वो जो अभी उनके पास है उसको वो होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि गोइंग बैक टू द बेसिक्स, यू नो, बहुत मुश्किल होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. So देखो, I think from that low point in life, I think I'm sitting where I'm sitting today. I learned the most amount of anything you can name it. Reactions of people, everything, rejections, and real true faces, everything, criticism, the value of money. You know, पहले शायद मैं भी नहीं करता था, ठीक है जाके ये कर लिया. So saving is very important. मगर आप जब उस पॉइंट से नीचे वहाँ से उठ के ऊपर दोबारा आते हो ना, तो आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब आप वहाँ पे थे आपका एक्सपीरियंस भी तो है. बट बॉटम लाइन कम्स टू हार्ड वर्क, एंड डोंट लुक एट द क्लॉक एंड वर्क.
डोंट इवन लुक एट इट. आप काम करोगे, इट्स गोना कम. अब देखो 10 में से 5 लोगों के लिए होगा, 5 का नहीं भी होएगा. तो डोंट गिव अप मैन. आई थिंक आई लर्न समथिंग इन माई लाइफ कि ऑलवेज लुक बिलो यू. तो अगर आप, जब मैं जॉब भी करता था, मैं देखता था यार जो स्टॉकर है उसकी तनख्वाह तो मेरे से कम ही है ना. मैं कैशियर हूँ, मेरी लाइफ तो इससे बहुत This is अच्छी very है. important, ठीक yeah. है. फिर जब मैं मैनेजर बना तो मैं कहता था यार कैशियर से तो मेरी लाइफ अच्छी है. फिर सुपरवाइजर बना, फिर डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस बना, फिर एक स्टोर का ओनर बना. तो अगर आप ऊपर देख के बस करते रहोगे ना यार कि वो इस बंदे के पास तो बड़ा पैसा आ गया आप है, डिप्रेशन में भी रहेंगे, डिप्रेशन में रहोगे, रिग्रेट एज वेल. यू रिग्रेटेड कि यार मेरे पास तो घर ही नहीं आना, कभी ये नहीं होना. और भाई उसको देख के अपनी लाइफ नहीं गुजारो. आप अपने आप को देखो कि आपके नीचे नीचे कौन है. लोगों के पास छत नहीं है सर के ऊपर. यार अभी मैं पाकिस्तान से आया हूँ, पाकिस्तान के यहाँ पे भी यार पीपल आर स्ट्रगलिंग. यू नो लाइक आप पाकिस्तान बेसिक में, नीड्स, या आप पाकिस्तान में किसी को 5,000 रुपये दे दो, फॉर देम इट्स लाइक $500,000. यू नो, बट लुक बिलो यू. ऊपर देखोगे तो कभी आप सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते हो यार. अब इट्स लाइक कि मैं किसको देखूँ, इलॉन मस्क को देख के यार ये तो बिलियनर बन गया, ट्रिलियनर बन गया अभी, राइट, बनने वाला है बस. बनने वाला है. सो लाइक भाई डोंट डू द कंपैरिजन, बट look at when he started where he was. So nothing is undoable, nothing is unachievable. Sky's the limit. Think crazy, people are going to think you are crazy, and only I'll tell you one thing, only crazy people do crazy things and they go up in life, trust me. Thank you so much, Ayaz bhai, for being on this podcast. It was very motivational and truly eye-opening for many of the individuals who are watching this. And keep motivating us and keep sharing your stories. And I hope with your experience, we are going to learn as well. Inshallah. Thank you, Zarbi, for having me over here. And guys, subscribe. This guy is crazy. Thank you. And I'll see you in another podcast. Till then, take care.